Greetings to all of you in the blessed name of our Lord and our Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को प्यार भरा सलाम। The Lord has given us another opportunity to connect online and come together for the study of God's Word. परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया है कि इस प्रकार हम ऑनलाइन रीति से इकट्ठित होकर उसके वचन को सीख पा रहे हैं। On this topic of life after death, as we remembered just now, this is the 10th class we are having. और मृत्यु के पश्चात जीवन इस अध्ययन का जैसे अभी हमने स्मरण किया, यह 10वां सत्र शुरू है। And probably this is a topic that we can go on, studying in depth, but we are only having a very essential study, or what we have to, know about this, in an elementary way, basic way. Those are the things that we are considering. वास्तविक रूप में इस विषय को हम बहुत ही गहराई में जाकर सीख सकते हैं, लेकिन इन दिनों में हम केवल जो बुनियादी बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें हैं, वही बातें सीख रहे हैं। For example, last week we were considering about our presentation before the Father. जैसे पिछले सप्ताह हमने हमारा जो पिता के सामने प्रस्तुत किया जाना है उस विषय में देखा, And coming back to this earth in that glorious return. और फिर से इस पृथ्वी के ऊपर महिमा के साथ प्रकट होना ये भी देखा, And the 1,000 years rule over the earth. और 1000 साल का पृथ्वी के ऊपर जो राज्य है वह भी देखा। In fact, each one of that we can go on studying for weeks. और वास्तविक उसमें से हर एक विषय को अगर हम अध्ययन करें तो हमें हफ्ते उसमें गुजरेंगे। But our intention is not to go into such details. हमारी यह मनसा नहीं है कि हम इतनी गहराई में जाएं, but our intention is to know what is essential for us to know, the basic truths about that. हमारी यही इच्छा है कि जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो बुनियादी सच्चाई है, उसको हम सीखें। We should know what all are the things that are going to come in future. हमें ये बात समझना है कि भविष्य में कौन सी बातें होने वाली हैं। We who are waiting for the coming of the Lord, we who are waiting to, reach the presence of the Lord, should know what all are the things that are going to happen. हम जो प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन की बाट जो रहे हैं, हम जो प्रभु के साथ फिर से रहने वाले हैं, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि जो बातें होने वाली है उसको हम समझें। Knowing those things itself is not sufficient. उसको समझना इतना ही हमारे लिए काफी नहीं है। As we remembered in prayer, well, we should be able to live a very grateful life on this earth, giving glory to God. जिस प्रकार हमने प्रार्थना में अभी मांगा, उसी प्रकार हमें प्रभु के पास बहुत ही धन्यवादी हृदय के साथ और विश्वसनीय जीवन जीना है। When we think about this future, in the present time, there should be a transformation in our life. और जब हम भविष्य के बारे में सोचते हैं तो इन दिनों में हमारे जीवन में एक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है। If those things are not happening, well, the purpose of studying this is not fulfilled. अगर वो बातें हमारे जीवन में नहीं हो रही है तो यह अध्ययन करने का जो उद्देश्य है वह परिपूर्ण नहीं होगा। So may the Lord help us that these studies that we are doing will help us in our spiritual life, in our Christian life. प्रभु हमें सहायता करे, जो अध्ययन हम कर रहे हैं वो हमारे आत्मिक और पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में आशीष के कारण ठहरे। Probably next week we will be concluding this, lessons. प्रभु की इच्छा होगी तो अगले सप्ताह में हम इस अध्ययन को समाप्त करेंगे। Next week we will be looking at the, about certain truths about their eternity. अगले सप्ताह में हम जो सार्वकालिकता है उसके विषय में कुछ सच्चाई को देखेंगे। And one more week we will have, as it was announced every week, that is to have, answer the questions that you are having. और उसके बाद के सप्ताह में जो जैसे हम हर समय अनाउंस कर रहे हैं, जो प्रश्न पूछे गए हैं उसका जवाब वहां पर दिया जाएगा। So today we will be seeing one important event between the millennial kingdom and the eternity and the beginning of the eternity. आज हम महत्वपूर्ण एक बात को सीखेंगे, वह इस प्रकार से है, जो 1000 वर्ष का राज्य और जो सार्वकालिकता है उसके बीच में होने वाली बात को हम सीखेंगे। One important event, which will happen in between that, we have to look at. एक महत्वपूर्ण घटना वहां पर होने वाली है
उसके बारे में हमें देखना है। And that is Revelation chapter 20, verses 11 to 15. We have it described. और उसका जिक्र जो है प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 11 से लेकर 15 तक किया गया है। We will read that portion and kindly listen to what is being written there. उस भाग को हम पढ़ेंगे और हम ध्यान पूर्वक देखेंगे कि वहां पर क्या लिखा है। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 11 से 15 तक। बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। May the Lord add his blessings upon the reading of these verses. जो वचन हमने पढ़े हैं परमेश्वर उसके ऊपर अपने आशीष दे। And as I mentioned, this is a very important passage in the scripture. और जैसे मैंने बताया पवित्र शास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण यह परिच्छेद है। Here in this passage, the word of God tells us about the final judgment. यहाँ पर प्रभु का वचन हमें अंतिम न्याय के विषय में बताता है। We can give the title as the Great White Throne Judgment. और उसको हम एक बड़ा श्वेत सिंहासन जो न्याय का सिंहासन है ऐसा शीर्षक दे सकते हैं। Now, this portion is given to us so that we may know, about this final judgment, and we may tell the world also that there is a final judgment going to come. यह परिच्छेद इसलिए दिया गया है कि हम समझ सके कि एक अंतिम न्याय होने वाला है और हम संसार के लोगों को भी यह बता सके कि एक दिन एक बड़ा न्याय होने वाला है। Well, there are no other sources for the world to know that there is a judgment going to come. वास्तविक संसार में ऐसे कोई भी जरिया या मार्ग नहीं है कि लोगों को पता चले कि एक न्याय भी होने वाला है। About the judgment in the scripture, we have lot of references, but the portion that we read, it gives, a description that we don't have anywhere else in the scripture also to this detail. न्याय के विषय में पवित्र शास्त्र में बहुत जगह पर हम पढ़ते हैं, लेकिन जिस न्याय के विषय में अंतिम न्याय के विषय में महत्वपूर्ण बातें लिखी हुई है केवल इस जगह पर हम उस बातों को पाते हैं। So it is necessary for us to understand about this so that we may be informed and also we may tell it to others. इसलिए इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है ताकि हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके दूसरों को भी बता सकते हैं। Now, we will be looking at the details that are given about this final judgment, that is going to come. और यहाँ पर जो अंतिम न्याय होने वाला है उसके विषय में विस्तृत बातें दी गई हैं। Now, if you look at the title that is given, it says that it is a great white throne judgment. It is great. और जो यहाँ पर शीर्षक दिया गया है उसमें हम पढ़ते हैं कि बड़ा श्वेत सिंहासन और अंतिम न्याय, तो ये बड़ा सिंहासन है। Yeah, each and every word that actually describes what kind of judgment is going to be. और हर एक शब्द उसी बात को बताता है कि किस प्रकार से वह न्याय होने वाला है। So notice that word great. तो वह जो बड़ा शब्द है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान हम केंद्रित करेंगे। That itself tells us that we cannot take it lightly. और वह शब्द हमें इस प्रकार से बताता है कि हमें इसे हल्का नहीं लेना है। God is going to do this. परमेश्वर इस बात को करने वाला है। And all are going to stand and give, and hear this judgment of God. और हर एक को प्रभु के सामने खड़ा रहना है और परमेश्वर से उनका न्याय होने वाला है। It will be the final judgment. वह एक अंतिम न्याय होगा। So in that sense, it is great. और उस मामले में देखे उस बात में
वह एक बड़ा न्याय है। Secondly, notice that word white. दूसरा एक शब्द हम ध्यान देंगे, वो है श्वेत। White throne. It is white throne. वह श्वेत सिंहासन है। What is the significance of that color? और इस जो जो रंग है उसका क्या महत्व है? Well, in one sense, the whiteness speaks of holiness. और एक बात में देखे तो जो सफेद रंग है वह पवित्रता को दिखाता है। And sometimes whiteness speaks of wisdom also. और कहीं कहीं पर जो सफेद रंग है वह ज्ञान के विषय में भी बताता है। Now look at it. God judges in his wisdom and he judges in his holiness. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि परमेश्वर जो है वह उसके ज्ञान के अनुसार और पवित्रता के अनुसार न्याय करने वाला है। And the result will be a righteous judgment. और उसका परिणाम जो है वह एक धार्मिकता का न्याय वह होगा। And notice this, it is called as throne. ध्यान दीजिए, वहां पर लिखा गया है सिंहासन। Earlier, while we were looking at the judgment seat of Christ, और पहले जब हम प्रभु यीशु मसीह के न्याय सिंहासन के बारे में देख रहे थे, that is called as a seat, a judgment seat. उसको एक आसन, एक न्याय का आसन कहा गया है। But here, this is called as a throne, लेकिन यहाँ पर हम सिंहासन इस बात को देखते हैं। where a judge sits and gives the judgment. It is often called as judgment seat only. जहां पर न्यायी बैठकर न्याय करता है उसे आमतौर पर न्यायासन कहा करते हैं। But the judgment seat used here for that final judgment, well, it is called as a throne. लेकिन जो अंतिम न्याय के लिए जो न्यायासन का यहाँ पर जिक्र किया गया है उसे सिंहासन कहा गया है। Throne is, the seat of the emperors and the kings. और जो सिंहासन होता है वह जो बड़े बड़े सम्राट और राजा लोग होते हैं उनके बैठने की जगह होती है। That shows that this judgment is final and there is no other, people to whom we can go for a counter appeal. और इसका मतलब इस प्रकार से है कि यह अंतिम न्याय होगा और उसके बाद ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके पास हम न्याय के लिए जा सकते हैं। Suppose you have a case somewhere in the local, police station or the local court. अगर हम देखें कि जो स्थानीय पुलिस चौकी है या फिर स्थानीय जो कोर्ट है, न्यायालय है, वहां पर अगर हमारा केस जाता है तो if our case is failing there, rejected there, you can go to a higher authority. और वहां पर अगर हमारा केस जो है फेल हो जाता है तो हम उससे ऊपरी कोर्ट में, न्यायालय में जा सकते हैं। You can go to the district court, or above that you can go to the the high court. आप जो जिला स्तर पर कोर्ट होता है वहां पर, या फिर जो हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है, वहां पर जा सकते हैं। Even if the high court rejects it, you can go to the Supreme Court. अगर उच्च न्यायालय ने भी उसको खारिज किया तो हम सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। If everything is rejected, you can appeal to the president. और अगर सभी ने अगर हमारा जो अपील है वो खारिज किया तो हम राष्ट्रपति के पास भी जा सकते हैं। So there are various levels, in it where you can go for appeal. और अपील करने के लिए अलग-अलग प्रकार के स्तर वहां पर है। Now here we are told that this is from a throne. That means beyond that you have no person to go for an appeal. और यहाँ पर हम जब सिंहासन शब्द को देखते हैं, इसका मतलब इसके बाद किसी दूसरे के पास हम अपने केस या अपील लेकर नहीं जा सकते। It's final. यह अंतिम है। It is by the supreme authority itself, God itself, the emperor itself. और यह जो है परमेश्वर, जो महान साम्राज्य करने वाला अधिकारी है, जो सर्वोच्च अधिकारी है, उसके द्वारा होने वाला यह न्याय है। So the title itself, we see the description or the character of the judgment that is going to come, that final judgment. और यहाँ के शीर्षक में ही हम देखते हैं कि किस प्रकार से यह जो अंतिम न्याय होने वाला है उसका विवरण उस शीर्षक में ही हम पाते हैं। Another thing we should notice is the coming of this final judgment is prophesied, is forewarned, it's told in the scripture very clearly.
और जो हम और एक बात यहाँ पर देखते हैं कि जो न्याय होने वाला है उसके विषय में बहुत ही स्पष्ट भविष्यवाणी या फिर होने वाली बातें यहाँ पर परमेश्वर के वचनों में लिखी हुई है। When we come to Ecclesiastes chapter 11, we see Solomon telling about this. जब हम सबोपदेशक उसके 11वें अध्याय में आते हैं, वहां पर सुलेमान उसके बारे में बताता है। In chapter 11 and verse 9, Solomon says, "Rejoice, O young man, in thy youth, and let thy heart cheer thee in the days of thy youth, and walk in the ways of thine heart, and in the sight of thine eyes. But know thou that for all these things God will bring thee into judgment." सबोपदेशक 11:9, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। What it means is, oh young man, you can live anyhow, whatever way you want to live now. इसका मतलब, हे जवान, तुझे भी जो कुछ करना है तेरे मन के अनुसार कर, But remember, there is a judgment. लेकिन ध्यान में रख, एक न्याय होने वाला है। Chapter 12, 12वां अध्याय, verse 14. 14वां वचन, For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। So it very clearly tells that everything, good and evil, everything shall be brought to judgment. तो यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा गया है, भला हो या बुरा हो, सब कुछ, सब बातों का न्याय होने वाला है। There are various other verses also in the Old Testament. We are not going into all that. बहुत और वचन पुराने नियम में है, लेकिन सभी वचनों की तरफ हम नहीं जाएंगे। Now come to the New Testament and we will read one portion. नए नियम में आते हैं, एक भाग को हम पढ़ेंगे। Look at chapter 17 of Acts and verse 31. प्रेरितों के काम 17वां अध्याय उसका वचन 31 हम पढ़ेंगे। There in verse 30, Paul is telling, and the times of this ignorance God winked at, but now commandeth all men everywhere to repent. और प्रेरित 17 के 30 में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। It's calling for repentance. और वह मन फिराने की आज्ञा देता है। Then in verse 31, he is giving the reason for such a call. और इस प्रकार की आज्ञा देने का जो कारण है, वह वचन 31 में वह बताता है। Because he hath appointed a day in the which he shall judge the world in righteousness by that man whom he hath ordained, whereof he hath given assurance unto all men, in that he hath raised him from the dead. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। The day of judgment is appointed. एक न्याय का दिन ठहराया गया है। Judge is appointed. न्याय करने वाला भी ठहराया गया है। Proof of it is given by God. और जो भी प्रमाण है वह परमेश्वर के द्वारा दिए गए हैं। See how clearly the Bible gives the proof, the evidence that there is a judgment that's going to come. और कितने स्पष्ट रूप में बाइबल हमें यह सबूत देती है कि एक न्याय बहुत ही जल्द होने वाला है। No one can say that I didn't know it, I was not told. कोई भी इस प्रकार नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं या मुझे बताया नहीं गया। Bible has, clearly mentioned about this day of judgment. और पवित्र शास्त्र इस न्याय के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप में बताता है। See, one thing we have to remember. एक बात हमें ध्यान में रखना है। I think we have seen that before also. और यह बात शायद हमने पहले भी देखी है। God doesn't do anything unless he share the matter with his servants, the prophets. और परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता या अपने नबियों को बताए बिना किसी बात को नहीं करता। He has a desire to communicate with his own, about the things that he is doing. और वह इस इच्छा को रखता है कि जो कुछ बातें वो करने वाला है वो अपने लोगों को बताए। Before he judged Sodom and Gomorrah, he told it to Abraham. सदम और गमोरा का न्याय करने से पहले उसने अब्राहम को बताया। Similarly, about the judgment that's going to come,
Well, in much detail, the word of God, he has written and given to us. उसी प्रकार से जो बड़ा न्याय होने वाला है उसके विषय में वचनों को देकर वह हमें उसके बारे में स्पष्ट रूप से बता रहा है। Now, we will come to the judge. Who is going to judge? हम उस न्याय के पास आएंगे, कौन न्याय करने वाला है। We have already seen that in Acts 17:31. हमने पहले ही प्रेरितों के काम 17 अध्याय उसके 31वें वचन में देखा है। He has appointed Jesus Christ as the judge. That's what we saw there. उसने प्रभु यीशु मसीह को न्याय करके ठहराया है, उस बात को हमने वहां पर पढ़ा। Now come back to our portion, that is Revelation 20. और हम अपने जो भाग हमने पढ़ा था वहां पर आएंगे, प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय। Look at verse 12. 12वें वचन को देखें। There it says, and I saw the dead, small and great, stand before God. वहां पर हम पढ़ते हैं, फिर मैंने छोटे बड़े सब के सामने खड़े हुए देखा। Just now I told that in Acts 17:31, it clearly tells that Jesus Christ, whom the Father raised, is going to be the judge. और जैसे मैंने अभी बताया कि प्रभु यीशु मसीह जिसको परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, वह जो है उसको न्याय करने के लिए ठहराया गया है। So the person who is going to sit on that great white throne will be the Lord Jesus Christ himself. तो इसलिए जो बड़े श्वेत सिंहासन पर जो व्यक्ति विराजमान होने वाला है वह खुद प्रभु यीशु मसीह है। But here in verse 12, John says that all would stand before God. लेकिन वचन 12 में जिस प्रकार हम इंग्लिश में पढ़ते हैं वहां पर लिखा है, सबको परमेश्वर के सामने खड़ा होना है। Notice that, before God. परमेश्वर के सामने। There are some people who would ask like this, is there any portion in the New Testament which says that Jesus Christ is God? कुछ लोग इस प्रकार से पूछते हैं कि पवित्र शास्त्र में क्या कोई ऐसा वचन है जो बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है? This portion is one such example. और यह वचन भी उस प्रकार से हमें बताता है। Other portions clearly tells that it is Jesus Christ who is going to judge. अलग वचनों में हम देखते हैं कि वहां पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ही न्याय करने वाला है। Here the person on that throne is called as God. और यहाँ पर जो सिंहासन पर जो व्यक्ति बैठा है उसे परमेश्वर कहा गया है। So Jesus Christ is God. तो प्रभु यीशु मसीह ही परमेश्वर है। Now come to John's Gospel chapter 5. यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आएंगे। There also we see this same truth about the judgment, and that judgment is given to the Lord Jesus. और यहाँ वहां पर भी हम न्याय के विषय में कुछ सच्चाई को पाते हैं। Chapter प्रभु 5 यीशु मसीह के बारे में हम वहां पर देखते हैं। Chapter 5 verse 22. और 5वां अध्याय वचन 22। For the Father judgeth no man, but hath committed all judgment unto the Son. पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। Verse 27. 27वां वचन। And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of Man. वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। Notice this. In verse 22, it says that all judgment is committed to the Lord Jesus. और वचन 22 में हम पढ़ते हैं, न्याय करने का सब काम प्रभु यीशु मसीह को दिया है। There he is called as Son. और वहां पर जो है उसे पुत्र कहता है। In verse 27 again it says that all authority for judgment is given to Jesus. वचन 27 में भी वो कहता है कि न्याय करने का सब अधिकार यीशु मसीह को दिया है। There he is called as Son of Man. और वहां पर वह यीशु मसीह का जिक्र मनुष्य का पुत्र करता है। In certain places when it says the Son of Man, that refers to various other truths about Jesus. विभिन्न वचनों में पढ़ते हैं कि मनुष्य का पुत्र जो प्रभु यीशु मसीह के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है वो हमें बहुत सी सच्चाई को दिखाता है। I am not going into those truths now. और उस सच्चाई के तरफ मैं अभी नहीं जा रहा हूं। But I want to remind you that this portion, verse 27, here the word or the term Son of Man is used to show the humanity of Jesus Christ.
लेकिन जो वचन 27 में हमने प्रभु यीशु मसीह के बारे में शब्द देखा, मनुष्य का पुत्र, वह उसके मनुष्यत्व को प्रकट करता है। He is man, वह एक मनुष्य है, perfect man. परिपूर्ण मनुष्य। And in verse 22, when it says son, that means the Son of God. और जो वचन 22 में हमने पुत्र देखा, उसका मतलब वह परमेश्वर का पुत्र है। When you speak about the Son or the Son of God, that tells about his deity. That is, he is God. और जब हम उसको परमेश्वर का पुत्र कहते हैं, तो वह उसके ईश्वरत्व को, जो वह परमेश्वर का पुत्र है, उस बात को हम देखते हैं। What I'm trying to say is, our Lord Jesus Christ is going to be the judge on that final judgment, and he has the authority to do that because he is God man. तो जो बात मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह अंतिम न्याय करने वाला है, उसे वह अधिकार मिला है क्योंकि वह ईश्वर मनुष्य है। He is perfect man and he is perfect God. वह परिपूर्ण मनुष्य है और परिपूर्ण ईश्वर परमेश्वर है। He is 100% God and he is 100% man. वह 100% परमेश्वर है, 100% मनुष्य है। We cannot fully explain it, but that is the truth we see about the Lord Jesus Christ. उसका पूरा विवरण हम नहीं दे सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में वह सच्चाई हम देखते हैं। As he is God, well, he can, judge on the behalf of God. वह परमेश्वर है, इसलिए वह परमेश्वर के तरफ से न्याय कर सकता है। And as he is man, he has the authority to judge over man also. और वह मनुष्य है, इसलिए उसे यह अधिकार मिला है कि वह मनुष्य का न्याय करे। And he is given all authority. और उसे सारा अधिकार दिया गया है। Along with that, we have to mention another thing also. उसके साथ और एक बात का हमें जिक्र करना चाहिए। When the Lord shall judge the whole world in that final judgment, even the believers also will have a part in that judgment. और जब प्रभु सब बातों का, सब लोगों का न्याय करेगा, तो विश्वासियों को भी उस न्याय में एक भाग मिलने वाला है। Come to 1 Corinthians chapter 6. पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय में आएंगे। Look at the beginning of verse 2. और उसका दूसरा वचन का शुरुआत हम देखेंगे। Do ye not know that the saints shall judge the world? क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? Look at verse 3. वचन 3। Know ye not that we shall judge angels? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? This is about the church. It's about the believers. और यह कलीसिया के विषय में, विश्वासियों के विषय में लिखा है। It very clearly tells that we shall one day judge the world. इसका बहुत ही स्पष्ट रूप में यह अर्थ है, एक दिन हम संसार का न्याय करने वाले हैं। So we see that along with the Lord Jesus Christ, well, we shall also be having a part in this judgment. और हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में ही हमें भी वह न्याय में एक भाग मिलने वाला है। Another truth about this white throne, great white throne, और इस बड़े श्वेत सिंहासन के विषय में और एक सच्चाई देखेंगे। which is the place where it is going to be set up. और ऐसी कौन सी जगह है जहां पर यह सिंहासन स्थापित किया जाएगा? When we were considering about the judgment seat of Christ, we saw that it will be in the air where we shall meet the Lord Jesus. और जो मसीह के न्यायासन के बारे में हमने पिछले समय में देखा, वह मध्य आकाश में या फिर हवा में वह स्थापित होगा और उसके सामने हम खड़े रहेंगे। Now, where shall this great white throne, be set up? लेकिन ये जो बड़ा श्वेत सिंहासन है, वो कहां पर स्थापित होने वाला है? It is not clearly told. स्पष्ट रूप में बताया नहीं गया है। Definitely, it's not in heaven. सच है कि वह स्वर्ग में नहीं होगा, because this is a judgment of the wicked. क्योंकि यह अधर्मी लोगों का न्याय होने वाला है। And when you read verse 11, we understand that it is not on the earth also. लेकिन जब हम वचन 11 पढ़ते हैं तो हमको ये भी बात समझ में आती है कि वह पृथ्वी पर भी होने वाला नहीं है। Because it says like this, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. क्योंकि वहां पर लिखा है कि उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए और उनके लिए जगह न मिली।
That means when the judgment seat, rather the great white throne is being set up, from before it, this present earth and heaven moved away, it went away. इसका मतलब जब ये बड़ा श्वेत सिंहासन जो अंतिम न्याय का है वह स्थापित किया जाएगा, उसके सामने से ये जो वर्तमान की जो पृथ्वी है वह भाग जाएगी. Where it went, where it goes, and all that we are not told. कहां पर वो भागेंगे हमें उसके बारे में वहां पर लिखा गया नहीं है. But one thing is clear, John says that it was not found, no place was found for him. लेकिन एक बात यहाँ पर लिखी है कि उनके लिए कोई जगह ना मिली. That shows clearly that this great white throne is not set upon this earth also. तो यह स्पष्ट रूप में हमें बता रहा है कि यह अंतिम न्याय का जो सिंहासन है वह पृथ्वी के ऊपर भी स्थापित नहीं किया जाएगा. So not in heaven and not in earth. स्वर्ग में भी नहीं और पृथ्वी में भी नहीं. Then where is it being set up? तो कहां पर वह स्थापित किया जाएगा? The only answer that we can give is, well, it is being set up in this atmosphere somewhere, or rather in this firmament between heaven and this earth itself. एक ही बात हम कह सकते हैं कि शायद वह इस वातावरण में, पर्यावरण में या अंतराल में पृथ्वी और स्वर्ग के बीच में कहीं पर तो स्थापित किया जाएगा. Some place in the universe, that's all we can say about it. और ये पूरे विश्व में किसी जगह पर वह स्थापित किया जाएगा. Now, the next thing we have to understand about this is, who all are the people who are going to stand before this throne for judgment? और एक बात के ऊपर हमें ध्यान देना है कि वह कौन लोग होंगे जो इस अंतिम न्याय सिंहासन के सामने खड़े होने वाले हैं. Let me tell you one thing, no believer will be standing before this for judgment. मुझे स्पष्ट रूप में बताने दो, कोई भी विश्वासी इस अंतिम न्याय सिंहासन के सामने खड़ा नहीं रहेगा. When we consider about the judgment seat of Christ, we saw that no sinner will stand in before that. जब हमने मसीह के न्यायासन के बारे में देखा तो वहां पर कोई भी पापी व्यक्ति खड़ा नहीं रहेगा. It's for the believers alone. वह केवल विश्वासियों के लिए है. But this great white throne, well, before that, for judgment, no believer will be standing. It's only for the sinners. लेकिन ये जो बड़ा श्वेत सिंहासन है वहां पर कोई भी विश्वासी खड़ा नहीं रहेगा, केवल पापी लोग वहां पर खड़े रहेंगे. Sinners, right from the beginning of history till the end of history, will be gathered before this throne. और इतिहास में शुरुआत से जो पाप किए हुए लोग हैं और जो आखिर तक पाप करते रहेंगे वे सभी वहां पर खड़े रहेंगे. When you come to verse 12, there John says like this, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged out of those things which were written in the books according to their works. और वहां पर वचन 12 में हम पढ़ते हैं, और एक पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया. Notice that the dead were judged. वहां पर देखिए, मरे हुओं का न्याय किया गया. Now come to verse 13. 13वें वचन में आएंगे. The sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged, every man according to their works. समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उनमें मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उसमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया. Yeah, here also we see the same truth. All the dead without Christ, dead as sinners, whether they died in the sea or whether they died in the earth, wherever they are, they shall be brought back before the throne. और यहाँ पर भी उसी सच्चाई को हम देखते हैं, वे सब मरे हुए जो मसीह के बिना मरे, जो अपने पाप में मरे, जो समुद्र में मरे या फिर अलग अलग जगह पर मरे, वे सभी मरे हुओं का न्याय वहां पर होगा. Let's turn to Daniel chapter 12. दानियल उसके 12वें अध्याय में आएंगे. And we will read verse 2. उसका दूसरा वचन हम पढ़ेंगे. There Daniel says like this, and many of them that sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे,
कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहराने के लिए। Two resurrections we see here. दो पुनरुत्थान हम यहाँ पर देखते हैं। Some to everlasting life. कितने सदा के जीवन के लिए, That's about the believers. और वह विश्वासियों के बारे में है। Then it says there are others who will be for everlasting contempt. और कुछ ऐसे भी है जो अनंत काल की नामधराई के लिए है, That is about the sinners. और वह पापियों के बारे में है। Come to John chapter 5 again. और फिर से हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 5वें अध्याय में आएंगे, Verses 28 and 29. 28 और 29 वचन। Marvel not at this, for the hour is coming in the which all that are in the graves shall hear his voice. वचन 28, इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। Notice that all that are in the graves. ध्यान दीजिए, जितने कब्रों में हैं वे सब, That includes everyone. उसका मतलब सभी, सब लोग। Come to verse 29. वचन 29, There it says that there are two kinds of resurrection, two destinations for these people who will come out of the death. और वहां पर हम देखते हैं कि दो पुनरुत्थान है और दो गंतव्य स्थान है जो मृत है उनके लिए। Verse 29 says, and shall come forth they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. जिन्होंने भलाई की वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। Two kinds of resurrections. दो प्रकार के पुनरुत्थान, Resurrection of life and resurrection of damnation. जीवन का पुनरुत्थान और दंड के लिए पुनरुत्थान। Now turn to 1 Corinthians chapter 15. पहला कुरिन्थियों 15वें अध्याय में आएंगे। There the order of these resurrections are being given. और वहां पर यह पुनरुत्थान का जो क्रम है उसके बारे में लिखा हुआ है। Look at verse 23. वचन 23 को हम देखेंगे। Every man in his own order, Christ the first fruits, afterward they that are Christ at his coming. परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। When we read Daniel and John, there about two resurrections were told, but the order of it was not told. हमने जैसे दानियल और यूहन्ना में पढ़ा, वहां पर दो पुनरुत्थान के बारे में लिखा है, लेकिन उनका क्रम वहां पर नहीं लिखा। Here in verses 23 and 24, Paul gives the order. यहाँ पर वचन 23 और 24 में पौलुस उस क्रम को देता है। He says that every man is in his own order. वहां पर वो कहता है, परंतु हर एक मनुष्य अपनी अपनी बारी से। All are not going to resurrect together. सभी एक साथ पुनरुत्थान, उन सभी का एक साथ पुनरुत्थान नहीं होगा। There is an order in the resurrection. वहां पर पुनरुत्थान में एक क्रम है। Christ is the first fruit. पहला फल मसीह है, And then all that belongs to Christ. उसके बाद जो भी मसीह के हैं वे सब। In that there are various orders. Within that, Paul is not giving those orders. उसमें जो क्रम है उसको पौलुस नहीं दे रहा है। At his coming, that is taken broadly. There are various lines, orders within that also for the resurrection of those who belong to Christ. और जो मसीह में है उनका जो पुनरुत्थान होगा उसके बीच में भी अलग अलग स्तर है, अलग अलग क्रम है, लेकिन यहाँ पर पौलुस उस बात का जिक्र नहीं करता है। But together he says, after they are that are Christ at his coming. लेकिन यहाँ पर वह कहता है कि मसीह के बाद वे सब जो मसीह के आने पर उसके लोग। Then look at verse 24. अब 24वें वचन को देखेंगे। Then cometh the end. इसके बाद अंत होगा। That means then cometh the last resurrection. इसका मतलब उसके बाद अंतिम पुनरुत्थान होगा। Here end means the end of resurrection or the last resurrection. यहाँ पर अंत इस शब्द का अर्थ है पुनरुत्थान का अंत या फिर अंतिम पुनरुत्थान। That refers to the resurrection of the unjust, that is the sinners. उसका मतलब जो अधर्मी लोग हैं, जो पापी लोग हैं, उनका पुनरुत्थान। And that is what we are considering. और उसी बात के ऊपर आज हम देख रहे हैं।
from the sea and from the earth, all shall come up from the dead, from the dust, and stand before the throne for the judgment. समुद्र में मरे हुए, पृथ्वी में मरे हुए और जो मिट्टी में से है वो मरे हुए सब उठ जाएंगे और मसीह के उस सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे. There are many other verses also which we can, refer to. We don't have to go into all that. बहुत अन्य वचन हैं, उसके संदर्भ में हम देख सकते हैं, लेकिन हम सब उस वचनों की तरफ गहराई में नहीं जाएंगे. Let me tell you one thing. एक बात मुझे बताने दो. By the end of the millennium, all the sinners shall be dead. जो 1000 साल का राज्य है, उसका जब अंत होने को आएगा, जितने भी पापी लोग हैं वे सब मर जाएंगे. Now, after the church is taken up to be with the Lord, there will be tribulation time in this earth. जब कलीसिया को मसीह के साथ रहने के लिए ऊपर उठा लिया जाएगा, तब पृथ्वी पर महासंकट काल का समय आएगा. That is for 7 years. We had seen that. और वह 7 साल का होगा, उसके बारे में हमने देखा है. At the end of that, the glorious appearance of the Lord Jesus shall come with the saints, with the church to this earth. और उस महासंकट काल के अंतिम में प्रभु यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ अपने उस महिमित रूप में पृथ्वी पर प्रकट होगा. Then he will set up his kingdom. और तब वह अपना राज्य प्रस्थापित करेगा. We have noticed that into that kingdom there will be many people entering with their natural bodies. और हमने देखा कि उस 1000 साल के राज्य के समय में बहुत से लोग अपने स्वाभाविक शरीर के साथ प्रवेश करेंगे. Those are people who are believing, from Israel and from the Gentiles of that time, who were believing and, who are worthy to enter into the kingdom. और वह ऐसे लोग होंगे जो इस्राएल या फिर जो अन्य जाति है, उसमें से जो लोग विश्वास करते हैं और जो उस 1000 साल के राज्य में रहने के योग्य है, वे लोग उसमें प्रवेश करेंगे. Believing and living at the coming of the Lord Jesus in the glorious appearance. और प्रभु यीशु मसीह के महिमा में प्रकट होने के समय जो उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे और जो जी रहे थे, वे वो लोग हैं. They shall enter into the kingdom with their natural bodies. और वह उस राज्य में अपने इस वर्तमान या स्वाभाविक शरीर के साथ प्रवेश करेंगे. Those who are glorified, they will be living in the New Jerusalem. और जो जिनका रूपांतर हुआ है, वे नए यरूशलेम में वास करेंगे. But those who are entering into it with the natural body, they shall live on this earth itself. और जो अपने स्वाभाविक शरीर के साथ प्रवेश करेंगे, वे केवल इस पृथ्वी पर ही रहेंगे. They shall live family life. और वे यहाँ पर पारिवारिक जीवन जिएंगे. They shall have children. उन्हें बच्चे भी होंगे. And the children who are born from them shall be born as sinners. और जो बच्चे उनके द्वारा उत्पन्न होंगे, वे पापी इस रूप में उत्पन्न होंगे. In the time of the millennium, the work of the Spirit will be very much higher than what it is now. और जो उस सहस्त्र काल में जो आत्मा का कार्य होगा, वो आज के समय से बहुत ही बेहतर और बढ़कर होगा. Witnessing shall be more powerful and extensive than it is now. और जो गवाही देने का जो प्रकार है, समय है, वो अभी के समय से बहुत ही ज्यादा और प्रभावित रूप से होगा. So those who will come to the Lord will be the majority. और जो मसीह के पास आएंगे वह बहुसंख्या में होंगे. As we have seen before, now they are a minority among the minority, isn't it? और जैसे हमने देखा कि अभी के समय में वो बहुत ही थोड़ी संख्या में है. But then it will be the majority. लेकिन उस समय में वह भारी संख्या में रहेंगे. But still there will be sinners. लेकिन तो भी वहां पर पापी लोग होंगे. Death shall be there, but death shall be rare. मृत्यु वहां पर होगा, लेकिन मृत्यु वहां पर बहुत ही कम स्वरूप में होगा. And when you come to the end of that 1,000-year reign, और जब इस 1000 साल के राज्य के अंतिम में हम आएंगे, there Satan shall be released from the bondage. और वहां पर शैतान को जो है बंधन से मुक्त किया जाएगा. And he will go and collect these sinners who will join him. और वह जाकर इन पापियों को इकट्ठा करेगा और वे उसके साथ जुड़ जाएंगे.
I think we had referred to this before. और मुझे याद है कि इसका जिक्र हमने पहले भी किया है। And they shall fight against the saints of the Lord. और वे जो है प्रभु के पवित्र लोगों के विरुद्ध युद्ध करेंगे। Now, when you come to chapter 20 and verse 9, we see what will happen to them. और जब हम प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय वचन 9 में आते हैं तो हमें समझ में आएगा क्या होगा। And they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. 20:9 वे सारी पृथ्वी पर फैलकर पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। We cannot explain how these things are going to happen, how the fire comes, how they will be destroyed, and things like that. हम इस बात का पूरा विवरण नहीं दे सकते हैं किस प्रकार वे नष्ट होंगे, किस प्रकार से स्वर्ग से आग उतरेगी। But we understand that they all will be, destroyed by the fire. लेकिन एक बात हम समझते हैं कि वे सभी लोग आग से भस्म किए जाएंगे। So by the end of the millennium, all sinners will be dead. तो इस सहस्त्र वर्ष के अंतिम में जितने भी पापी हैं वे सब मर जाएंगे। Now, when the throne, the great white throne is being set up, और जब ये बड़ा श्वेत सिंहासन स्थापित किया जाएगा, those who are dead, those sinners, wherever they are, whether in the sea or in the land, they are all raised up to bring and be judged before the judgment seat of Christ. और जितने भी मरे हुए हैं, जो समुद्र में होने दो, पृथ्वी में होने दो, वे सभी वहां से उठ जाएंगे और वे उठकर उस बड़े श्वेत सिंहासन के सामने न्याय के लिए खड़े रहेंगे। So as we saw here, every man shall be judged. तो हमने यहाँ पर देखा कि हर एक मनुष्य का न्याय किया जाएगा। None can escape. कोई भी उससे छूट नहीं सकता। How solemn is the thought, just remember. और कितना ही ये महत्वपूर्ण विचार है, इसके ऊपर थोड़ा हम देखना चाहिए। All shall, stand. All shall be brought before the judgment seat of Christ. सभी वहां पर खड़े रहेंगे, सभी को प्रभु के उस सिंहासन के सामने खड़ा रहना है। Now, what will be the basis of that judgment? और वह जो न्याय होगा वो किस आधार पे होगा? Now, when you come to the portion which we are considering, there we see two things in connection with that. और जो भाग हम देख रहे हैं वहां पर उसके संदर्भ में दो बातों को हम देखते हैं। In verse 15, we read like this. वचन 15 में इस प्रकार से पढ़ते हैं, Whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग की झील में डाला गया। This lake of fire is the hell. और ये जो आग की झील है वह नरक है। So here, those who are going to be cast into it are those whose names are not found in the book of life. तो उसमें वो लोग डाले जाएंगे जिनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला। In verse 12, we saw the mention of many books and the book of life also. वचन 12 में हम बहुत पुस्तकें और जीवन की पुस्तक इसका जिक्र देखते हैं। This doesn't mean that in heaven there are, literal books printed and kept. इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग में शाब्दिक रूप में पुस्तकों को प्रिंट करके वहां पर रखा हुआ है। These are all, given metaphorically. और ये सब अलंकारिक रूप में लिखा गया है। When these books and all are mentioned here, what it means is, well, God knows who are his. God knows the life of everyone in this earth. और यह जो पुस्तक यहाँ पर हम बात देखते हैं उसका यह अर्थ है, प्रभु जो उसके हैं उनको पहचानता है और जो कुछ भी पृथ्वी पर होता है वो सब बातें प्रभु को पता है। Those whose names are found in the book of life are the believers. और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं वे सब विश्वासी हैं। When we come to the Gospels, we see the Lord telling the disciples to be happy because their names are written in the book. और जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं प्रभु अपने चेलों को कहता है कि तुम्हारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, उससे ही तुम आनंदित हो जाओ। Even in Philippians chapter 4, Paul tells about the believers whose names are in the book. और फिलिपियों उसके चौथे अध्याय में भी पौलुस विश्वासियों को कहता है कि जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं। So whose names were not found in that, well, they will be judged before the judgment seat of Christ.
और जिनका नाम उस पुस्तक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, उन सभी का न्याय उस सिंहासन के सामने होगा। Not only that, केवल इतना ही नहीं, in the last portion of verse 12, it says, it will be according to their works also. और वचन 12 के अंतिम भाग में लिखा है, वे उनके कामों के अनुसार होगा। According to their works. उनके कामों के अनुसार। The first thing is, if the name is not in the book of life, you're going to hell. पहली बात यह है कि जब आपका नाम उस जीवन की पुस्तक में नहीं होगा, तो वह व्यक्ति आग की झील में जाएगा। But then, how much punishment is going to be meted to each one? तो किस प्रकार से यह न्याय सबका होगा? What will be the measure of punishment given to them? और ये जो न्याय होगा उसका प्रमाण किस प्रकार से है? That will be dependent upon, upon the works that they do. और वह उन्होंने कौन से प्रकार के काम किए हैं उसके ऊपर निर्भर है। According to their works, that's what it tells. और कामों के अनुसार न्याय जो है उस बात को हमें बताता है। That shows that even punishments there shall not be equal to everyone. इससे हम एक बात को समझते हैं कि जो दंड हर एक को मिलेगा वो सबको सरीका नहीं मिलेगा। Well, even the rewards for the believers are also not equal. We had seen that before. और हमने ये भी देखा था जो प्रतिफल विश्वासियों को मिलेंगे वो भी एक सरीके नहीं है, उसमें विभिन्नता है। Similarly, punishment given in the hell also shall not be equal. उसी प्रकार से जो दंड नरक में मिलेगा वो भी समान नहीं है, अलग अलग प्रकार से है। According to their works, it shall be given. और उनके कामों के अनुसार वह उनको दिया जाएगा। When we come to Matthew's Gospel, chapter 11, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 11वें अध्याय में आते हैं, when you read verses 21 to 24, वचन 21 से लेकर वचन 24 तक जब हम पढ़ते हैं, there we see the words that the Lord spoke unto Galilean cities like Capernaum, Bethsaida and all. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह जो है वह गलीली जो नगर है, कफरनहूम, अलग अलग नगरों के बारे में वह वहां पर बोलता है। The Lord said, if the things that were done among you were done in Sodom and Gomorrah, they would have repented and turned to God. सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम या गमोरा में किए जाते तो वे प्रभु के ऊपर विश्वास करते और मन फिराते। Then the Lord said, in the day of judgment, well, their punishment will be lesser than what the punishment given to you. वचन 24 में वह कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा सदोम की दशा से अधिक सहने योग्य होगी। Well, that shows that everyone will not be given the same punishment. There are grades, there are differences and degrees. और उस बात को हम स्पष्ट रूप में देखते हैं कि सभी को एक प्रकार का दंड नहीं मिलेगा, वहां पर अलग अलग प्रकार का विभाजन है, प्रकार है। Now when we come to verse 14, there it says, and death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. और वचन 14 में हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य 20 का 14, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए, यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। There we see about the death and hell. Hell should be Hades, just as it is in Hindi. Hindi is the right translation there. Death and Hades shall be cast into the lake of fire. और वहां पर हम देखते हैं मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। Lake of fire is the hell. और आग की झील जो है वह नरक है। Now let me tell you one thing. Now hell is empty. मुझे एक बात बताने दो, अभी जो नरक है वह खाली है। I don't know whether I've told this before or not. Hell is empty now. मुझे याद नहीं पहले मैंने बताया है क्या, लेकिन नरक जो है अभी खाली है। Now when a sinner dies, he goes to Hades, the tormenting place. और जब पापी व्यक्ति मर जाता है तो अधोलोक में जो सताव की जगह है वहां पर वह पहुंचाया जाता है। That is where the rich man went in the parable of the Lord Jesus. और जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जो दृष्टांत दिया धनी व्यक्ति के बारे में, वह धनी व्यक्ति जिस जगह पर पहुंचा वही यह जगह है। That is not hell. वह नरक नहीं है। The Hades, that is an intermediary place, the place before the hell. जो अधोलोक जो है वह नरक और मृत्यु के बीच की जो वह जगह है। Without judgment, God will never put anybody in the hell, the final destination. न्याय
किए बगैर परमेश्वर किसी को भी अंतिम न्याय जो और अंतिम दंड है जो नरक है उसमें नहीं डालेगा। So the soul of every sinner is there in Hades. तो हर एक पापी व्यक्ति का आत्मा जो है वह अधोलोक में है। Right from Cain, they are all there. कैन से लेकर जितने भी है सभी वहां पर है। Until the end of the millennium, just now I told that those who come against the Lord, that in the final, the war and death, all of them will go there. और प्रथम से लेकर सहस्त्र वर्ष का जो अंतिम दिन है वहां तक के जितने भी पापी जो प्रभु के विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं सभी की आत्माएं वहां पर अधोलोक में है। And from there they shall join the body and they shall be risen. और वहां से वे अपने शरीर के साथ जुड़ जाएंगे और जी उठेंगे। And they shall stand before this judgment seat of Christ. This great white throne judgment. और वहां से उठकर वे बड़ा श्वेत सिंहासन जो है मसीह का है उसके सामने खड़े रहेंगे। Then only they will be put in the hell. और उसके बाद जो है उन्हें नरक में डाला जाएगा। As I said, hell is empty now. जैसे मैंने बताया नरक अभी खाली है। The first people who will be put there will be the Antichrist and the false prophet. और जो पहले व्यक्ति वहां पर डाले जाएंगे वह झूठा भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी वे लोग होंगे। In Revelation 19:20 we have it. और प्रकाशित वाक्य उसका 19वां अध्याय वचन 20 में वह लिखा है। And after that, the third person who will land up there will be Satan. और उसके बाद जो तीसरा व्यक्ति उसमें डाला जाएगा वह शैतान है। Chapter 20 of Revelation and verse 10 we have it. प्रकाशित वाक्य उसका 20वां अध्याय वचन 10 में उस बात को हम देखते हैं। Probably along with him, all the angels also, which are with him, demons and everything may go to the same place at that time. और उसी के साथ पतित हुए जितने भी दूत हैं जो दुष्टात्माएं हैं उन सभी को वहां पर डाल दिया जाएगा। And then the turn will be for all the sinners that joined him, in the history. और उसके बाद इतिहास में जितने भी पापी लोग उसके साथ जुड़े हुए हैं उनका न्याय वहां पर होगा। Now one thing we have to remember. एक बात हमें ध्यान देनी है। This hell is not made for man. नरक जो है वह मनुष्य के लिए बनाया नहीं गया है। It is made for Satan and his angels. वह शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया है। When you read Matthew 25:41 in the words of Jesus, we see that very clearly. मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय वचन 41 में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोला हुआ उस वचन को हम स्पष्ट रूप में वहां पर देखते हैं। Some people ask, how can God, create a place like this, like hell, and put man in that? कुछ लोग इस प्रकार से पूछते हैं कैसे परमेश्वर ने ऐसी जगह को बनाया, नरक को बनाया और मनुष्य को वहां पर डालेगा? Is he not love? Is he not gracious? क्या वह प्रेम नहीं करता? क्या वह करुणा नहीं दिखाता? Well, hell is not made for man at all. तो इस बात को हमें देखना है कि नरक जो है कभी भी मनुष्य के लिए बनाया नहीं गया था। If any single person, human being, ends up in hell, it is because of his own choice. और कोई भी व्यक्ति अगर नरक में जाता है तो वह अपनी ही पसंद के अनुसार या अपने ही चुनाव के अनुसार वहां पर जाता है। Not God's choice for him. परमेश्वर का उसके लिए वह चुनाव नहीं है। In 1 Timothy 2:4 we see the desire of the Lord. और पहला तीमुथियुस 2:4 में हम परमेश्वर की इच्छा को देखते हैं। God's desire is that everyone should repent and come to the knowledge of truth. और परमेश्वर की इच्छा यही है कि हर एक जन मन फिराए और सत्य की परिपूर्ण पहचान में बढ़े। For that, whatever was necessary, God has done it. और उसके लिए जो कुछ भी महत्वपूर्ण है, जरूरी है, परमेश्वर ने किया है। So if anybody misses that blessing and ends up in this damnation, in hellfire, it is because of his own choice. और कोई भी इस आशीष से छूट जाता है या फिर अंत में उस दंड में अंतिम उस नरक में जाता है तो वह केवल अपने ही चुनाव के कारण है। There are other people who think like this. कुछ लोग इस प्रकार से विचार करते हैं। Well, hell
the punishment in the hell may not be eternal. It may be only for a few years, and then God may destroy the sinners, annihilate the sinners. नरक जो है या फिर नरक का जो दंड है वह अनंत काल के लिए नहीं होगा, कुछ समय के लिए होगा। उसके बाद परमेश्वर उन लोगों को नष्ट कर डालेगा। Either he will annihilate them or he will save them. People think like that. एक तो या फिर वो उनको चंगा करेगा या फिर वो उनको उद्धार देगा, इस प्रकार से लोग सोचते हैं। They say that God, who is love, will not eternally put a person in hellfire like that. वो कहते हैं कि परमेश्वर प्रेम है और वह अनंत काल के लिए मनुष्य को नरक में नहीं डालेगा। But let me tell you one thing. एक बात मुझे बताने दो। Well, when we are looking about the resurrection, it says that resurrection to life is there, eternal life is there, resurrection to eternal damnation also is there. पुनरुत्थान ऐसा है कि एक जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए पुनरुत्थान है, और एक ऐसा पुनरुत्थान है जो अनंत काल के दंड के लिए पुनरुत्थान है। We cannot take one eternal ananta kal with one meaning and the other one with another meaning. हम उस अनंत काल को एक अर्थ में नहीं ले सकते हैं और दूसरे को दूसरे अर्थ में नहीं ले सकते हैं। If eternal life is eternal, unending, then eternal damnation is also unending. It is the same meaning. और जो जीवन के लिए अनंत काल है या अनंत काल का जीवन है उसे भी अंत नहीं है, और जो दंड के लिए जो अनंत काल है, अनंत काल का दंड, उसे भी कोई अंत नहीं है। We cannot say anything beyond that. उसके परे हम कुछ भी नहीं कह सकते। May the Lord help us that we may know these truths. प्रभु हमें सहायता करे इस सच्चाई को हम समझे। If you really, think about it, well, it is very solemn, it is very serious. अगर हम सच्चाई में इसके बारे में सोचे तो ये बहुत ही गंभीर बात है। In Greek, the word used for hell is Gehenna. और ग्रीक भाषा में नरक के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया वह गहना है। That word Gehenna originally was used for, the place which is east of Jerusalem, which was used as a dumping place for the city of Jerusalem. और जो गहना ये शब्द है वह यरूशलेम के पूर्व की ओर एक ऐसी जगह थी जहां पर कूड़ा या कचरा डाला जाता था, वह जगह थी। It's called as the Valley of Ben Hinnom. और उसे बेन हिन्नोम की तराई इस प्रकार से कहते हैं। The word Gehenna comes from that word Ben Hinnom. और जो बेन हिन्नोम शब्द से गहना शब्द आया है। Notice that every city has got a dumping place. हर एक नगर में एक कूड़ा कचरा डालने की जगह होती है। Yeah, for Mumbai also we have dumping places in various places. मुंबई के लिए भी हमें बहुत जगह पर कूड़ा डालने की जगह है। No one will go there. कोई भी वहां पर नहीं जाता है। No one will say, oh, okay, next weekend we will go to the dumping place and see the beauty of it. कोई भी ऐसा नहीं कहता है कि चलो अभी इस सप्ताह के अंतिम में हम वो जो कचरा डालने की जगह है वहां पर जाकर थोड़ा घूम फिर के आएंगे। It's a place of fire always. और ऐसी जो वो जगह है जहां पर आग जो है हमेशा जलती रहती है। Smoke keeps on rising. वहां पर धुआं हमेशा ऊपर उठता रहता है। Worms and things like that are there. और वहां पर जो कीड़े वगैरह प्रकार वहां पर होते हैं। Well, the comparison of hell is to such places, in the scripture. और नरक की तुलना ऐसी जगह से पवित्र शास्त्र में की गई है। People should understand that it is not a desirable destination. लोगों को यह समझना चाहिए कि ये बहुत ही मन को भाने वाला यह स्थान नहीं है। People should know that, well, it is the place only useless, worthless, things are being put. और लोगों को इस बात को यह समझना है कि वह ऐसी जगह है जहां पर जो निरर्थक, अर्थहीन, किसी मतलब की जो चीजें नहीं है उनको वहां पर डाला जाता है। At the same time, let me tell you one thing. और उसी समय मुझे आपको एक बात बताने दो। Just as Mumbai and Delhi are real places, heaven and hell also are real places. जिस प्रकार मुंबई, दिल्ली यह सच्चाई में अस्तित्व में रहने वाली जगह है, उसी प्रकार स्वर्ग और नरक भी वह भी सच्ची वह जगह है। That doesn't mean that
hell and heaven and all are, physical places. इसका मतलब ये नहीं कि स्वर्ग और नरक एक भौतिक जगह है, These are all spiritual areas. वह जो है वह आत्मिक जगह है, We can't fully explain it. उसको हम पूरी रीति से बता नहीं सकते। As we have seen before, we cannot say where it is also. जैसे हमने पहले ही देखा, वो कहाँ पर है वो भी हम नहीं कह सकते। What I said is, they are all real places. वह जो है वह सच्चाई में अस्तित्व में रहने वाली जगह है, And these truths are written and given to you and I in the scripture, so that we may know these things and share it with others. और यह सच्ची बातें पवित्र शास्त्र में इसलिए लिखी गई है ताकि हम इस बातों को समझे और दूसरों से बांटे। So today, while we are looking at these truths, well, the intention is that we should have a clear idea about the final judgment and the destination after that, the hell. और आज हमने इस बात का अध्ययन इसलिए किया ताकि जो अंतिम न्याय है और उसके बाद जो अंतिम गंतव्य स्थान है उसके विषय में हमें पूर्ण रीति से उस बात को हम समझ जाए। The Lord's servant D.L. Moody used to say like this. प्रभु के दास भाई D.L. मूडी इस प्रकार से कहते थे, My students should have a clear vision of hell. मेरे विद्यार्थियों को नरक के बारे में पूरा दृष्टांत होना चाहिए। They should be taken for 1 hour to the hell and kept above it to see the condition there. और उनको 1 घंटे के लिए उस नरक में लेकर जाना चाहिए और वहां की क्या परिस्थिति है वे उसको जानने चाहिए। That will help them to, as an encouragement, that will make them zealous for the work of the Lord. क्योंकि वे परमेश्वर के काम के लिए प्रोत्साहित होंगे और एक ऐसी मनसा रखेंगे ताकि वे प्रभु का कार्य और करें। They will have a desire to, draw many people from that hellfire. और उनको एक ऐसी इच्छा उनमें जागृत हो कि बहुत से लोगों को वह उस आग की झील में से बाहर निकालेंगे। Last about 1 hour, we have been having a vision of it. We were discussing about the truths about it. और इस पूरे अभी पिछले 1 घंटे में हम वही बात को देख रहे हैं, उसी बात को हम समझ रहे हैं। Well, whatever we have heard should put in our heart a desire to work for the Lord more earnestly, bring more people to the Lord than, they're going to end up in situations like this. और इस बात से हम भी प्रोत्साहित हो जाए, वह भावना प्रभु हमारे मन में भी उत्पन्न करे कि हम प्रभु के लिए जिएंगे, प्रभु का कार्य करेंगे और जो लोग नरक में जा रहे हैं उनको वहां से हम खींच कर लाएंगे। If there is anybody listening to me who is not sure of this destination, make it sure. अगर कोई ऐसा जो मेरी बात को सुन रहा है जिसको अपने इस आखिरी स्थान के बारे में निश्चितता नहीं है, कृपया अपने बारे में सोचे और निश्चित हो जाए। Anybody traveling will know where they are going, what their destination is. अगर कोई ऐसा है जो यात्रा कर रहा है लेकिन कहां पर जाना है पता नहीं है, anybody will be knowing the destination. और हर एक को जो है अपना अंतिम स्थान पता होना चाहिए। So may the Lord give us grace that we may also know where we are going. प्रभु हमें भी उस प्रकार का अनुग्रह दे कि हम समझ जाए कि हम कहां पर जा रहे हैं। And those of us who have received the Lord Jesus Christ, let us be thankful to God for opening our eyes to be in the right path. और जितनों ने भी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे ताकि उसने हमें एक उचित मार्ग पर लाया है। May God bless these words. प्रभु इस वचनों के ऊपर अपने आशीष